کے سابق وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایس ایم عمران کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پنجاب کابینہ کمیٹی برائے قانون نے 17 ستمبر کو منظوری دے دی۔ کابینہ کمیٹی سے استعفیٰ منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دور نایاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے۔ دور نایاب آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو میٹرز کی جو ہے اس نے باقاعدہ وائس چیئرمین ایل ڈی اے سابق جو تھے ایس ایم عمران، ان کو باقاعدہ ڈی نوٹیفائی کرنا اور ان کا استعفیٰ منظور کرنے کی جو ایک بہت بڑی قانونی ضرورت تھی اس کو مکمل کر دیا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ ان کا استعفیٰ منظور کرنے کا کابینہ کمیٹی برائے قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک آئینی عمل تھا جس کو پورا کیا گیا ہے، اور ایل ڈی اے ایکٹ میں اور ایل ڈی اے ایکٹ کے بعد جو وائس چیئرمین کی تقرری کا اختیار اور اس کے بعد اس کی ڈی نوٹیفیکیشن کا اختیار تھا، اس کو لیجسلیٹو اسمبلی کی کابینہ کمیٹی سے بہت ضروری تھا کہ اس کو منظور کرایا جاتا، جو اب تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ 2 ماہ کے بعد اس کو پورا کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے واضح رہے کہ وائس چیئرمین ایل ڈی اے سابق جو ہیں ایس ایم عمران، انہوں نے 16 اگست کو اپنی پوزیشن سے استعفیٰ دیا تھا، جس کے بعد 1 مہینہ بعد تو وزیر اعلیٰ کی جانب سے ان کا استعفیٰ منظور کیا گیا، اور اب پھر اور مدت پوری کرنے کے بعد ایک ٹائم لگا، اور ٹائم لگنے کے بعد باقاعدہ ان کی ڈی نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے۔ آج کے بعد ایل ڈی اے کی جو ایکٹ میں ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد کوئی وائس چیئرمین ایل ڈی اے ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے یہ بھی بات سامنے ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو اپنے خصوصی اختیارات بطور چیئرمین تفویض کیے ہوئے تھے ایس ایم عمران کو، وہ اب کسی اور کو دینے کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہی کسی کو ابھی تک سیاسی شخصیت کو وائس چیئرمین ایل ڈی اے کے لیے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ جی دور نایاب، بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں، کیپٹل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کالا شاہ کاکو کے متاثرین کا دوبارہ دھرنا۔ متاثرین نے ظہور الہی روڈ پر پلیٹینم مارکیٹ دفتر کے باہر دھرنا دے دیا۔ سوسائٹی انتظامیہ مکمل ادائیگی کے باوجود قبضہ نہیں دے رہی۔ متاثرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، مزید کیا کہتے ہیں عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ عثمان بتائیے۔ جی، کیپٹل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو متاثرین ہیں وہ آج دوبارہ سے پلیٹینم مارکیٹنگ کے دفتر کے باہر موجود ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اتوار کے دن ان کے مسائل حل کیے جائیں گے، ان کی داد رسی کی جائے گی، لیکن وہ تھانے میں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے، لیکن ان کو کوئی بھی چیز نہیں دی گئی ہے، نہ ان سے کوئی بھی شخص آ کر ملا۔ ہمارے ساتھ اس وقت وہ متاثرین موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے، کتنے کا فراڈ ہوا ہے آپ سے؟ جب یہ تقریباً 4 سال سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے جب یہ پیسے جمع کروائے تو ان کو کچھ عرصے کے بعد تقریباً پتہ لگ گیا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے، تو انسٹالمنٹ دینی بند کر دی۔ وہ ان کو جب غریب آدمی کی جیب سے 10 روپے بھی چلے جائیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے ان کو۔ آج 3,60,000 روپے ان سے چلا گیا ہے، آج نہ وہ پیسے واپس آ رہے ہیں، نہ پلاٹ ہمیں دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ فراڈ ہوئے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں نہ۔ جی، ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ یہاں پہ ایک اور متاثرہ شخص ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے تھانے کے اندر بیٹھ کر جو مالکان تھے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ آپ کے ساتھ کل کیا واقعات پیش آئے؟ آپ نے کل ملنا تھا مالکان سے، کیا ہوا ہے؟ کل ایس ایچ او صاحب نے ہمیں بلایا تھا تھانے میں کہ ہم ان سے آپ سے بات کروائیں گے ان کی، لیکن وہ بھی نہیں وہاں پہنچے۔ 5 گھنٹے ہمارے انتظار کرنے کے بعد، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا ایس ایچ او اور ایس پی تک لاچار ہو گئے ہیں اور وہ نہیں پہنچ رہے، اپنے ٹاؤٹ بھیج رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک دم کلین چٹ دے دی کہ آپ جائیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کو ہے ہی نہیں تھی، سب فراڈ تھا۔ تو ہم نے آج پھر یہی لاہے عمل تیار کیا کہ آج ہم پھر یہیں دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں جب تک ہمارے مطالبات نہیں سنے جاتے۔ پرویز الہی صاحب جن کا قریبی گھر ہے، ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا قریبی گھر ہے، ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات کریں، ہماری داد رسی کریں۔ جی، یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے، ان کو پلاٹ دیے جائیں یا ان کے پیسے واپس کیے جائیں، لیکن مالکان جو ہیں ان کی نہیں سن رہے ہیں۔ یہاں دفتر کو تالے لگا کر یہاں سے چلے گئے ہیں، کوئی بھی شخص یہاں پہ ان سے بات کرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ یہاں احتجاج کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ تھے۔ متاثرین کی جانب سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ شہر میں ڈینگی کیسز خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 153 نئے مریض سامنے آ گئے۔ مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 182 ہو گئی۔ گزشتہ روز 57,866 انڈور، 8,130 آؤٹ ڈور مقامات کی چیکنگ، ریکارڈ 1,322 لاروا برآمد ہونے پر موقع پر ہی ترک کر دیا گیا۔
तो शहर में डेंगू केसेस खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में 153 नए मरीज सामने आए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 182 तक जा पहुंची है और गुज़िश्ता रोज 57,866 इंडोर, 8,130 आउटडोर मुकामात की चेकिंग की गई, जबकि रिकॉर्ड 1,322 लार्वा बरामद होने पर मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। आपको बताएं, शहर में डेंगू की सूरत हाल है जो कि खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। 24 घंटों में 153 नए मरीज सामने आए हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद इस वक्त 182 हो चुकी है और गुज़िश्ता रोज 57,866 इंडोर, 8,130 आउटडोर मुकामात की चेकिंग की गई, जबकि रिकॉर्ड 1,322 लार्वा बरामद होने पर मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। 24 घंटों के दादोशुमार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 153 नए मरीज सामने आए हैं। दूसरी जानिब कोरोना की शिद्दत में कमी आ गई। मस्बत केसेस की शरह 4.5% रह गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से एक हलाकत हुई, 257 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से सिर्फ एक मौत रिपोर्ट हुई, जबकि 257 नए मरीज सामने आए। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.5% रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के हुकाम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। एहतियात ही कोरोना से बचाव का मौसर हल है। निकासियाब के 2 मेगा मंसूबों में अहम पेशरफ्त हुई है। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने हाजी कैंप ड्रेन और डिस्पोजल स्टेशन की अराजी पर सेक्शन 6 नाफिज कर दिया। दोनों मंसूबों के लिए 22 केनाल अराजी एक्वायर कर ली गई। हाजी कैंप से रिवर रावी तक स्टोरम वाटर चैनल के लिए 17 केनाल 4 मरला अराजी एक्वायर करने की खातिर सेक्शन 6 लागू किया गया। हाजी कैंप स्टोरम वाटर चैनल का मंसूबा मैकलोर रोड, लक्ष्मी चौक, चबुर्जी चौक, शामनगर रोड और गुजने रावी से रिवर रावी तक मुकम्मल किया जाएगा। स्टोरम वाटर चैनल के लिए मोजा मजंग की 9 मरला, राजगढ़ की 5 केनाल और मोजा नौनारिया की 11 केनाल 14 मरला अराजी एक्वायर की गई है। DC ऑफिस एक्वायर की गई जमीन के मुतालिक रेट्स की हतमी मंजूरी देगा। नए डिस्पोजल स्टेशन के लिए 5 केनाल अराजी पर भी सेक्शन 6 नाफिज कर दिया गया है। मोजा शेराकोट की 2 केनाल जबकि मोजा सांदा कल्ला की 3 केनाल अराजी एक्वायर की गई है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 6, 7 और 8 के तहत मुतासिरीन को आखिरी नोटिस अरसाल होने के बाद अवार्ड सुना दिया जाएगा। पुलिस, ड्रग कंट्रोलर और जिले इंतजामिया का नशा आवर अद्वियात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत इजलास में नशा आवर अद्वियात की रोकथाम के लिए तबादला ख्याल। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अजहर जमाल ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए जामे पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। मार्केट में नशा आवर अद्वियात की दस्तियाबी को हर सूरत रोकना होगा। नारकोटिक्स पुलिस और इंतजामिया की मुश्तरका टीमें नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वालों पर क्रैक डाउन करें। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने कहा कि मुतल्लिका इदारों की मरबूत और तसलसल के साथ काविशें ही नतीजा खेज साबित हो सकती हैं। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद। वजीर आला को 560 अरब रुपए के जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन PND बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबुल ने वजीर आला पंजाब का इस्तकबाल किया। वजीर आला ने PND बोर्ड के मुलाजमीन से भी मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम बराए साल 2021-22 पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सेक्रेटरीज ने 3 माह के दौरान सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। वजीर आला को 360 अरब रुपए के जिले तरक्याती पैकेज पर भी ब्रीफिंग दी गई। सरदार उस्मान बुज़दार ने तरक्याती मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल समेत फलस्तीनियों और कश्मीरियों की इखलाकी सिफारती सियासी हिमायत जारी रखने का भी इयादा किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और रुकने बरतानवी पार्लियामेंट नाज शाह ने मसला कश्मीर और फलस्तीन फौरी हल करने का मुतालबा किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान कश्मीरियों के हकीकी मानों में सफीर बनने का हक अदा कर रहे हैं। भारत खिते में दहशतगर्दों का सबसे बड़ा सहूलतकार और अमन का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के होते हुए खिते में अमन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान अमन और अक़लियतों के साथ, जबकि भारत दहशतगर्दों के साथ है। गवर्नर पंजाब ने नाज शाह समेत दीगर बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट की कश्मीरियों और फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करने के इकदाम को सराहा। नाज शाह ने कहा कि कोई शक नहीं कि दुनिया में अमन के लिए मसला कश्मीर और मसला फलस्तीन का हल करना लाजिम हो चुका है। हम हर लम्हा कश्मीरियों और फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए पार्लियामेंट समेत हर फोरम पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नेशनल T20 मैचेस की तैयारियां उरूज पर हैं। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी की कजाफी स्टेडियम आमद, पीसीबी हुकाम से मुलाकात की, सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने इजलास में अलाइड डिपार्टमेंट्स की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के खिलाड़ियों और शायकीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस मौके पर एसपी हेडक्वार्टर इमरान अहमद मलिक, एसपी साइद अजीज और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे, जबकि आर्मी, पंजाब रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ने भी शिरकत की। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर की सफाई के लिए हॉट स्पॉट मैपिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। डिजिटल मॉनिटरिंग का पायलट प्रोजेक्ट दातागंज बख्श टाउन और समनाबाद टाउन से शुरू किया गया है। सीईओ LWMC राफे हैदर के मुताबिक दातागंज बख्श टाउन में 422 और समनाबाद टाउन में 202 पॉइंट्स की जियो फेंसिंग कर ली गई है। समनाबाद के पॉइंट्स पर 607 और दातागंज बख्श की हुदूद में 961 कंटेनर्स रखे गए हैं। जियो फेंसिंग और मैपिंग एरियाज को साफ रखने और कंटेनर्स की बरवक्त सफाई की यौमिया रिपोर्ट एप्लीकेशन पर अपलोड की जाएगी। जदीद डिजिटल सिस्टम के तहत तमाम ओपन प्लॉट्स की सफाई की सर्वेलेंस भी की जा सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के बेहतर नताइज आने पर उसका दायरा कार पूरे शहर में फैलाया जाएगा। और अब बात करेंगे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिन्ना अस्पताल के इलेक्शन के हवाले से। तो आपको बताएं कि डॉक्टर नवीद अहमद 559 वोट लेकर सदर मुंतखब हो चुके हैं। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार डॉक्टर उमर शाह ने 454 वोट हासिल किए। इलेक्शन में 1460 में से 1047 वोट कास्ट हुए, 34 मुस्तरद हो गए। YDA सदर की नशिस्त पर कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिन्ना अस्पताल का इलेक्शन, जिन्ना अस्पताल में डॉक्टर नवीद अहमद 559 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए हैं। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार डॉक्टर उमर शाह ने 454 वोट हासिल किए हैं और इलेक्शन में 1460 में से 1047 वोट कास्ट हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रैक पर लाया जाएगा। पीसीबी के आईन 2019 में तरामीम करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आईन 2019 और डोमेस्टिक क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर में तरामीम का काम शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक बोर्ड, सूबाई और सिटी एसोसिएशन क्लब्स के आईन में जरूरी तब्दीलियां लाई जाएंगी। आईन में तरमीम करके सिटी के साथ रीजन्स को भी दोबारा मुतारिफ करवाया जाएगा। मुजवजा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में माजी की तरह 16 रीजन्स का किरदार दोबारा बहाल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फर्स्ट क्लास में सूबाई टीमों की तादाद फिल वक्त 6 रही है, ताहम रीजनल टीम्स को 3 रोजा क्रिकेट 16 खिलाने की तजवीज़ है। मुजवजा स्ट्रक्चर में इंटर क्लब, इंटर सिटी और इंटर रीजन चैंपियनशिप्स के बाद 6 सूबाई टीमें बनेगी। चेयरमैन पीसीबी ने गवर्निंग बोर्ड के एक रुकन को आईन में तरामीम का काम सौंप दिया है। बोर्ड के रुकन ने आईन में तरामीम के तरीक़ाकार का जायजा लेना शुरू कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।